So, hi Marina, how are you? What's going on? I'm doing awesome, and it's a wonderful Sunday morning. Or I'm very happy to see you after a really long time. Okay, so for everyone, मरीना जो है वो उनका एक छोटा सा इनिशिएटिव पे काम करती हैं डायलॉग को कि लोगों के बीच में डायलॉग कैसे हो और किस तरीके से होना चाहिए। मुझे भी उतनी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जितना मैं इनसे सीखा है, आई रियलाइज दैट देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग और in our day-to-day life, dialogue play a vital role. So we'll understand more from Marina that why this dialogue, how this dialogue, and what about this dialogue. And हमारा ये Yes. तय किया है कि हमने कोई भी प्री क्वेश्चनेयर हमने सेट नहीं किया है, ना ही कोई आंसर्स उसके प्रिपेयर किए हैं, because then it will lose the authenticity of our discussion and conversation or dialogue. So let's Absolutely. start. So Marina, just I wanted to understand that ये जो डायलॉग वाला चीज है या डायलॉग की बात, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? मतलब क्यों उस पे आपको लगा कि देयर इज अ नीड टू डिस्कस दिस और देयर इज अ नीड टू हैव अ डायलॉग ऑन अ डायलॉग? सो हाउ दिस केम टू योर माइंड? Right. So it's about 10 years back. I was back from the university and a 23-year-old, having fun in life, absolutely no idea where to go. And तभी ऐसा था कि that moment में बहुत सारे friendships, relatives, I don't know, बहुत सारे रिश्ते ऐसे टूट रहे थे. Like I was not really having that great sense of people in my life, like people cheating on you, people leaving you. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में थी और मैंने शायद से अपने कॉलीग के साथ कुछ ऐसे ही रूडली बात किया हो, आई डोंट नो. एंड ऑफिस के बाद वो मेरे पास आती है, शी सेज, मरीना, आई एम अ पर्सन ऑफ डायलॉग, आई बिलीव इन डायलॉग, एंड जो तुमने ऑफिस में बताया, इट वाज नॉट फेयर, एंड दैट रियली हर्ट मी. एंड आई वाज टेकन अ बैक. और मुझे उसने जो बताया उसका कुछ इम्पैक्ट तो हुआ नहीं, मतलब आई हैड नथिंग अगेंस्ट हर और इवन आई डिडंट थिंक ऑफ हर, बट आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई रियलाइज कि कितना सिंपल होता है. इट्स सो सिंपल कि तुम सामने वाले बंदे को बता दो कि देखो जो तुमने किया ये मुझे पसंद नहीं आया, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर, यू नॉट जजिंग द पर्सन. तो वो ऑथेंटिसिटी, वो एक रियलिटी चेक जो मुझे आई, दैट gave a sense of curiosity. And that time I was a Facebook queen, and still I don't think so I am, but I went on Facebook and I said the power of dialogue, and मैंने एक पेज क्रिएट किया, the power of dialogue. And everyone started, coming saying, wow, this is nice, this is good. And I was like, okay, yeah, let's see. So, as a researcher, I have my own strengths. So I started searching what is dialogue. And kabhi bhi dialogue pe jao, to you get interfaith, कि एक मुस्लिम क्रिश्चियन सब आ गए हैं और अपने अपने धर्म के बारे में बात कर रहे हैं. Then I came across Leonard Swidler from Institute of Dialogue Philadelphia. I came across Dialogue Society in London. I came across certain people, but what I realized is ये सारे theoretical बात कर रहे हैं. कोई भी एक reality check, एक आम पर्सन को जो मैं बताऊं कि तुम ये डायलॉग में ब्रेक थ्रू कैसे ला सकते हो, इधर विथ योर बॉयफ्रेंड, योर फैमिली, योर कॉलीग, योर बॉस, वट एवर इट मे बी. तो वो सर्च हेल्प मी सर्च मोर. एंड आई सेड नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ रियलिटी चेक करना है. तो आई क्रिएटेड एन इवेंट ऑन फेसबुक सेइंग कि dialogue for human rights, and that I was very active in promoting human rights work with the young people. So dialogue for human rights, so everyone is like, they joined the event, right? And then everyone is like कि हो क्या रहा है Facebook पर. So I don't know, like, so I said, okay, the Facebook page is open, you join the event and you're free to just write what you feel. And that whole month I was exploring what is to dialogue for human rights, and it went on for 11 months. We know that that was something I didn't plan. It was just people building in, because I realized that there was people who actually reacted to it or responded to it. They said there's something different, kabhi suna nahi iske bare mein. And that gave me a platform to really work on this whole project. And this was around 2012 October, something like that. And 2000 like 13,
January, I think maybe after 6 months, I'm not sure, but after 6 months of that, I launched a banner called The Power of Dialogue. Mhm. So this is just a banner which I carry with pride, and this is designed by the same person who, intervened and told me that, look, Marina, what you said was not right. So I really owe deep gratitude to her, and वहां से वो banner start हो गया, and everyone was like, ये project है, तुम NGO start कर रहे हो, ये for profit है क्या? I said no, this is a search for a young person. तो मैं एक डायलॉग यात्रा स्टार्ट की, मैंने जस्ट मरीन ड्राइव पे एक बैनर खोल दिया और वहां पे स्टार्ट कर दिया बात करना कि ये है. आई वेंट फॉर अ फैमिली पार्टी, आई ओपन माई बैनर एंड स्टार्टेड टॉकिंग एंड आई सॉ पीपल क्राइंग. And then I was invited to some institute in Gujarat, in other places. It also gave me international recognition for my work. So what I realized was that somewhere in that curiosity, I was exploring the reality of dialogue. कि ये dialogue है क्या? हम बहुत सारी बातें करते हैं. Whenever we think of dialogue, एंड जितना भी मैंने सर्च किया, इट ऑलवेज कम टू इंटरफेथ डायलॉग्स. इट कम्स टू, बकायदा मैंने उस पर एक दो इवेंट्स भी किए हैं इंटरफेथ पे. बट देन माय होल सर्च वाज कि हम वी लिव इन अ लैंग्वेज. Mhm. आप और मैं जब बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमारी एक लैंग्वेज होती है. और जब हम क्रॉस कल्चरली बात करते हैं, तो कुछ वर्ड्स या कुछ लैंग्वेजेस में बाधाएं आती हैं, या फिर द वे वी टॉक टू पीपल. लाइक इंडिया में तो हम बहुत ऐसे, चलो यार, चलो चाय पीने जाते हैं. तुम यूरोप में ऐसे बात करो तो दे विल गेट ऑफेंडेड. आई मीन, यू नीड टू पुट इन अ रिक्वेस्ट, यू नीड टू सेट एन अपॉइंटमेंट. So it also came from that perspective, that how people in their cultures communicate. Then it went to sign languages, it went to silence, and things like that. And I think it was people's experiences that I was collecting, and based on those experiences, I was driving this initiative, this project. And that is how it kept growing, it kept working. And I never monetized on it because it came from a very personal experience. Mhm. So I never thought of that at all. So, and yeah, I'm very happy that because of this project, because of this initiative, many people, especially my engagement was with young people, so they always came back and told me that they could really have breakthroughs in interacting with people. And it was not communication. मैं यहाँ पे distinguish करना चाहूंगी कि dialogue and communication is not the same. While dialogue can be a part of your communication, but dialogue is more of the inside. It is not to Vinod, it is through Vinod. I'm I think getting this is a very, very, to, very important what Alina yes, is saying is not to Vinod, but it's through Vinod. So we need to understand the difference between communication and dialogue. So I think yeah, that's the core of dialogue. And to be honest, Marina, I think I know you from last almost 7, 8 years, and one reason for me to connect with you, even in 2022, end of 2022, is your dialogue. Because I just now what you said, that you means some of your colleague felt a little bit offended and she came to you and directly shared with you. I think this is what it is required in present scenario. Either it's organization, either it's your home, either it's any place. Because we keep on thinking that she is like that, वो ऐसी है, वो ऐसा है, एंड हम उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, एंड देन समवेयर वो कहीं ना कहीं मेंटली भी आपको डिस्टर्ब करता है, एंड पूरे या इफ यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इम्पैक्ट करता है. बट आप अगर जाके बात करते हो, डायलॉग करते हो, तो वो चुटकी में आपकी प्रॉब्लम को खत्म करता है. तो वो बहुत ज़रूरी है. और ये तो आपने छोटा-सा इंसिडेंट बताया. कई बार क्या होता है, मीन्स आई हैव लेड फ्यू ऑर्गनाइजेशंस, सो आई हैव सीन दैट वहाँ पे ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दिस एक्चुअली डाइल्यूट द एंटायर ऑर्गनाइजेशनल कल्चर. फैमिलीज़ में भी हम देखते हैं बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि डायलॉग नहीं हो पाता है. सो अभी मरीना, मीन्स जस्ट आई वांटेड टू फोकस ऑन वन थिंग हियर, दैट अभी कोविड आया. And in COVID, people have spent like 2 or 2.5 years in their home, वो अपना work from home कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं. There were a lot of people I have met and seen that they were complaining about कि वो stress में आ गए हैं. So now they have opportunity to do a more dialogue within their families. But right. this means, what's your perspective? How you see कि वहाँ पे dialogue का क्या आपको लगता है कि कुछ कमी रहा, या
ये प्रॉब्लम कुछ ही लोगों के साथ है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? ओके, सो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है, और आई वुड से जब मैं मेरे खुद के प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, आई कैन टॉक लाइक सम माइलस्टोन्स अबाउट सक्सेस, द सेम टाइम आई कैन टॉक माइलस्टोन्स ऑफ फेलियर्स, जो खुद के पर्सनल इंटरेक्शन के साथ आता है. सो even if I say that I promote dialogue and I work on it every day and make effort, what I've also realized is that I have terribly failed in dialogues, because what I've realized कि ये ऐसे नहीं कि तुमको सामने बिठा दिया कि हाँ मेरा एजेंडा है, मुझे लगता है कि डायलॉग इज द सोल्यूशन. तो ये हुआ है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो थे, दे हैव एस्केप्ड इंटरेक्शन विद देयर फैमिलीज. सो हमारा काम होता है, हम बिजी होते हैं, लेकिन बिजी वर्ड जो है ना, बहुत ही एक नॉर्मलाइज्ड हो गया है कल्चर कि हम बिजी हैं. तो इधर यू आर स्केड्यूल्ड और यू आर नॉट स्केड्यूल्ड. बिजी क्या होता है, यू नो तो यू फूल एंड काट आई हैव देना भी बिजी, स्केड्यूल्ड. फूल हाँ, मतलब काटना वो एक बिजी एक है। एक्सक्यूज हो गया. हाँ, तो लोगों को वो सेंस ऑफ सेल्फ नहीं हुआ है, और जो दूसरे पीपल की जो वैल्यू है, मतलब यू टेक योर मदर फॉर ग्रांटेड, यू टेक योर वाइफ फॉर ग्रांटेड, योर चिल्ड्रन फॉर ग्रांटेड. तो वो टाइम क्या हुआ है, जब when the COVID hit and everyone was under the same roof, आप खुद की आइडेंटिटी सर्च करने जाते हो, और उस आइडेंटिटी में जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, then when some other person comes, it kind of imbalances your space, and as I said कि हमारे कल्चर में भी ऐसा होता है बहुत सारे इसमें कि पेरेंट्स या फैमिली में ना बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाती हैं. कि अभी भी जब मैं कहीं फॉरेन चले जाऊं या कहीं ट्रैवल करूं, तो मेरी माँ का एक क्वेश्चन होता है कि खाना खा लिया, क्या कर लिया, अच्छा तुम पहुंच गए, अच्छा ठीक है. तो अनटिल आई क्रिएट अ स्पेस कि चलो मम्मी आप बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हुआ था, तुम्हारा बचपन कैसा था. तो दैट सेंस ऑफ रिलेटेडनेस जो हम कहते हैं, आई वुड ऑलवेज चूज द सेंस ऑफ रिलेटेडनेस टू अ पर्सन आई एम इंटरेक्टिंग विद. तो यही मैंने डिस्कवर किया जब आई वाज कंडक्टिंग वर्कशॉप्स, और मेरे वर्कशॉप्स बहुत ही टेलर्ड वर्कशॉप्स थे. सो आई नेवर पिक्ड अप समथिंग एंड आई डम्प्ड इट ऑन माय agenda. So it was, I searched, I had evidence to it, and I was doing also an experiential experiments, you can say. Of course, it was with due respect, discovering with the people I was working with. And I realized that बहुत लोगों को बहुत कुछ कहना है, एक्सप्रेस करना है, पर बिल्कुल। उनके पास वो वोकैबलरी नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है. लेकिन बरीना, एक जैसे एक मैं यहाँ पे 1 मिनट रोकूँगा आपको। अ, मतलब वोकैब्युलरी की बात तो एक है, बट दूसरा कि मुझे मुझे ये लगता है कि शायद उनके पास कोई सुनने के लिए भी नहीं है, कि किस मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें कहनी है, बट मैं किससे दीवार से बात करूँ? किससे बात करूँ? और बहुत सारे लोगों ने अभी टेक्नोलॉजी के उसमें एक ज़रिया ढूँढ लिया है। वो रील्स बना रहे हैं, वो कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अ, ये मेरा मतलब मानना है। तो आपको क्या लगता है कि वोकैब की दिक्कत है, या शायद कोई सुनने वाला नहीं है उसकी, नहीं, या फिर या कुछ? सो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एंड इट कैन मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट जो आपने रेस किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम जब डायलॉग की बात करते हैं, उसका दूसरा पहलू ये भी है कि डायलॉग इज नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्टिव लिसनिंग. तो तुम सुनते हो किसी को और वो होता है. तो ये जब होता है कि इट इज नॉट एफर्ट ऑफ वन पर्सन, इट इज एफर्ट ऑफ टू पीपल. बिकॉज जब विनोद आप मुझसे बात करते हो, तो आप यूर ओपनिंग अप योर लाइफ, और यूर ओपनिंग अप वन एस्पेक्ट ऑफ योर योर लाइफ, एंड आई एम अ लिसनर हु इज कमिटेड कि जो विनोद कह रहे हैं, आई विल जस्ट लिसन विदाउट एनी फिल्टर, आई विल जस्ट ऑब्जॉर्व दैट, राइट. तो इसका भी जो कनेक्ट होता है वो ऐसे होता है कि इट्स all the game of the human relationships that you build in your life, हुँ, हुँ। so if your life is कि ठीक है, I will just meet this person because मेरा कोई business agenda है, या फिर I'm like okay ठीक है, this person has that great status तो I'll do, तो आप देखोगे कि बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही हैप्पी है, मतलब they are happy, और they don't have to party all evening or every weekend.
बट फेस्टिवल्स में देख लो या कहीं देख लो, दे आर वेरी फुलफिल्ड विद द ह्यूमन रिलेशनशिप्स दैट दे हैव, इधर दे आर रिलेटिव्स, दे आर फ्रेंड्स, यू नो. और एक अलग भी स्पेस ऑफ पीपल यू कैन सी वेयर दे आर पार्टिंग, दे आर लाउड, दे आर टॉकिंग, उनको पता नहीं उसमें डेप्थ नहीं है. तो the sense of connection is not only by being together and doing certain activities, but it is, as I said, it is through you. I understand who you are. I try to connect to you as a person, and what matters to Vinod matters to me, right? So when you connect to the person, जैसे कि एक simple example मैं दूंगी, I personally don't like pets. ठीक है, मतलब मैं कहीं जाऊं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बट देन व्हाट आई रियलाइज कि जिनके घरों में पेट्स होते हैं या फिर जो कनेक्ट करते हैं उनके साथ, उनके लिए वो एक फैमिली मेंबर है, एक वेरी इंपॉर्टेंट, सो व्हेन आई नाउ इंटरेक्ट विद माय सम फ्रेंड्स हु हैव देयर पेट्स, so I say, hey, how is your XY, so yeah, cool. He or she was like not feeling well, so you feel connected to those people, their stories. So it's not about me, it's about what the other person cares for. And that is a blessing in disguise, because when you start caring for the other person, you automatically start realizing that they have connected to your life. Because तब it's like तुम्हारे पास बहुत कुछ कहने को है, और मैं अभी ऐसे झोली फैलाकर कह रही हूँ कि तुम कह दो जो भी कहना है कह दो, फिर मैं भी कह देती हूँ, and then we are done with it, and then we have this empty blank place, and then we say ठीक है, आप और मैं रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, इसको आगे कैसे लेके जाएंगे. तो वो ही है कि इट्स एफर्ट फ्रॉम ऑल द एंड्स, and especially the person, if I am a person who feels कि dialogue important है, then I should start making the initiatives. Why I tell the failure part of it is because बहुत बार ऐसे मेरे लाइफ में हो गया कि मैंने कह दिया कि यार दिस इज नॉट द प्लेस आई वांट टू डायलॉग, नो, यहाँ पे तो मैं उस बात को छेड़ने वाली नहीं हूँ. बहुत बार खुद का ईगो सामने आ जाता है, बहुत बार यू डोंट वांट टू साउंड अ मम्मी टू समवन, बहुत बार यू आर लाइक, एम आई ready for that dialogue, you know. So बहुत सारी चीजें होती हैं, and I feel that your sense of self is the core of that. So when I was doing Dialogue Yatra, I realized that it was like a sense of bucket list, which young people used to do in the fraction of like 30-45 minutes. And मैं उनको एक टास्क देती थी कि तुम यहाँ जाओ, कुछ बात करो, सिली सा कुछ करो, ये करो. And then they realized that किसी स्ट्रेंजर को जाके पूछना, कुछ बात करना, उनके लिए कितना, मतलब कितने सारे बैरियर्स आ गए थे. बट व्हेन दे took off all the barriers and they said नहीं, ये टास्क ये मुझे करना है, in the process they discovered कि it's so easy to just go and give it a chance. So they had like positive experiences and negative experiences also, but then the idea is, how much do you want to be that person who's fulfilling that whole objective of you being a person of dialogue. या तुम्हारा पार्ट बन जाता है, इट्स पार्ट ऑफ यू. दोनों ऐसे बहुत बार हो गया है कि देयर हैज बीन अ सिचुएशन विद अ फ्रेंड एंड आई एक्चुअली डिडंट डायलॉग, मतलब मैं अपने से दिमाग में वो खिचड़ी बनाते रही, and it took me months to figure out why I was acting so weird and why is being so judgmental about a person like that. And then I realized that somewhere I have not practiced the whole dialogue part of it. Like जब तुम्हारे वो क्या कहते हैं, it's part of your value, right? It's somewhere part of your value. So once it is out of it, then you don't. So then I realized कि ठीक है, you just dialogue का banner लगाकर बात कर कर कुछ होता नहीं है. You have to start living every day in your life. And if I experience something right now with Vinod and I feel कि विनोद जो कह रहे हैं वो बहुत judgmental है, या फिर I feel that he is probably not on the right path, then I should have the courage. तो courage and compassion dialogue के दो पहलू हैं, like it goes together, because it takes a lot of courage to initiate that dialogue. लेकिन So that is what has been the how this experience. courage will come? See, I tell you very practically. होता क्या है, sometimes मुझे आपसे बात करनी है, तो मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें आती हैं। कई बार आता है कि इट्स गुड टू हैव कि ठीक है, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, कल नहीं करते हैं, परसों करते हैं। एंड इट गोज़ ऑन, एंड फिर लगता है कि ओके, बात नहीं करना इज़ आल्सो काइंड ऑफ अ डायलॉग, और वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है। दूसरा लगता है कई बार कि
यार अभी मैं मरीना से जाके बात करूंगा, इशू है, एंड इफ शी विल नॉट रिएक्ट इन अ प्रॉपर वे, तो कैसा लगेगा। तीसरा, एक मैंने जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे पास कई बार कई सारे लोग आते भी हैं, कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं आपके पास बात करने गया किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो कहीं वो प्रॉब्लम और बिगड़ मत जाए। तो जो आपने कहा ना, करेज, वो हाउ समबडी विल हैव अ करेज, क्या करना पड़ेगा करेज के लिए? कहाँ से आएगी वो करेज कि आई विश वो बात मार्केट करें? में कहीं मिलती हो, बट हाँ, ऐसे मार्केट कहीं में है होता भी नहीं है। करेज एक्चुअली। है भी हालाँकि नहीं है, नहीं दो है। देयर आर आई लॉट ऑफ मीन, लीडरशिप प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं। इनफैक्ट मुझे लगा कि इस पे भी कुछ बात करनी चाहिए कि सब लीडर्स बना रहे हैं, फॉलोअर्स तो कोई बना ही नहीं रहा है। आजकल कहीं भी कुछ भी है उस पे लिख दो कि लीडरशिप, द मोमेंट यू स्टार्ट, लाइक आप प्लास्टिक की कोई बॉटल बेच रहे हो, उस पे लिख दो लीडरशिप। आप लैंप बेच रहे हो, लीडरशिप। आप कोई टॉय बेच रहे हो, लीडरशिप। सब लीडर बना रहे हैं, फॉलोअर तो बना ही नहीं रहे हैं। तो वो करेज तो सब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहाँ से आएगा करेज बात करने yeah, so before I go to courage, I don't have I'm not sure a right or wrong answer to this, but before I go to courage, what I can first address is, um, the context of the dialogue that you're talking about. का? कि situation क्या है? As you said rightly, कि कुछ जगहों पे it's wise to not talk. It's हम्म, wise not to give an opinion, right? तो करेज भी एक वेरी सब्जेक्टिव स्पेस में मैं बात करूंगी इसमें, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, एंड आई वाज रियली थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज बहुत हवा में उड़ रहा है, एंड कुछ कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे सही नहीं लगा, हम्म, राइट? तो माय इंटेंशन ऑफ, और आई कैन से दैट कमिटमेंट आई हैव टू द फ्रेंड, कि अगर लाइफ में कोई गलत मुझे लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुझे वो एड्रेस करना है, राइट? तो करेज वहां से आता है। इट्स जस्ट अ शिफ्ट इन योर इंटेंशन। तो आप ये कह रहे हो कि कहीं न कहीं हमें खुद को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे स्टेप लेना है, नहीं लेना। तो नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं। बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो आप बात हम्म। कर रही थी थ्रू वाली और टू वाली नहीं। तो थ्रू जब होगा तो वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन है कि अ, ये शायद अ, एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात करने की ज़रूरत है। मैं इन चीज़ों को रख सकता हूँ या इस पोलाइट वे में मैं बात कर सकता हूँ। तो रिफ्लेक्शन आई थिंक वो उसकी आप बात कर रहे हो यस, मरीना? यस, काइंड ऑफ दैट, बिकॉज क्या है ना कि वो करेज ऐसा नहीं होता है कि तुम लायन के जैसे आ जाओ और तुमको डेमोन्स्ट्रेट करना है। ये वॉमिट नहीं करना है। जब लोग डायलॉग की बात करते हैं ना, तो लोग को ऐसा लगता है कि बस पकड़ो, बात करो, मेरे हुँ, माइंड में जो है मैं बता दूं। हुँ, बट इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। इट्स अबाउट कि वो कभी करना है, तो ये भी एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और उसमें एक चीज है जो आई वांट टू ब्रिंग अप, और जो मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखी है, इट्स अबाउट द वल्नरेबिलिटी इन डायलॉग। हुँ, हुँ, When and this I have borrowed from the research work which Dr. Brené Brown has done. हुँ, She's a professor in US, and उसकी बहुत सारी books हैं, Daring Greatly, and recently she also came up with this book called the Heart of it, Heart of that Class of the Heart, where हुँ, she talks about almost 82 emotions, and she's trying to help people understand कि ये, of course you don't have to buy all of that, but to understand कि अगर मैं आपको कह रही हूँ तुम बड़े स्ट्रेस लग रहे हो यार, मतलब ये मेरे लैंग्वेज में है, मैं सबको देखती हूँ कि ये स्ट्रेस, लाइक रियली नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, लाइक मैं तो सीरियस बंदा ही हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मतलब सो पीपल को हमेशा जस्टिफाई करना पड़ता है। वी आर सो लाइक, तुम स्ट्रेस लग रहे हो, हुँ, अरे तुम सैड हो क्या? मतलब जैसे कि मैं तो ऐसे बहुत, आपको पता है मैं बस चुलबुली हूँ, मतलब ऑल एक्टिव एंड डांसिंग अराउंड। तो हुँ, सडनली व्हेन आई एम क्वाइट, सडनली बीमार तो नहीं है, सैड तो नहीं हुँ, है यार, मतलब कांट आई बी लाइक नॉर्मल, कांट आई जस्ट बी माई सेल्फ समटाइम्स, तो तो दैट इज व्हाट आई रियलाइज, दैट डायलॉग it makes you vulnerable, and your courage is a antidote to that vulnerability. कि जब तुमको vulnerability आती है, then you step in to take courage, and when you take that courage, you become that beautiful person. Irrespective of whatever the response comes from the other person, you have made that effort in a very sincere spirit, which हुँ, may also fail. हुँ। But the fact that are you taking action is the question.
आई थिंक मरीना ने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की कही हैं, और वो हम सबको समझने की जरूरत है. The first thing is that you need not to be a tiger or lion or lioness or tigress. हमें लगता है कि अच्छा नहीं नहीं, जो आपने कहा ना कि जाके एकदम सुना देना है, बता देना है. डायलॉग पोलाइट वे में भी होता है. डायलॉग जरूरी नहीं कि बिकॉज हमको लगता है कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि एकदम अपना एकदम आपने कोई अलग सा सुपरमैन का चोला ओढ़ लिया है या सुपर हाँ. वुमेन का चोला ओढ़ लिया है, एंड देन यू आर कॉन्फिडेंट. तो आई थिंक वो ना डेफिनेशन भी बिकॉज हमको वही सिखाया गया है कि कॉन्फिडेंस मतलब हाँ एकदम आप सबसे तेज हो, सबसे आगे हो तो कॉन्फिडेंट हो. हकीकत ये है कि कॉन्फिडेंस जो है विद इन है. ठीक है, वो आउटर वर्ल्ड में तो दिखता ही नहीं है, वो विद इन आपके होता है. डायलॉग के लिए पोलाइट होने की जरूरत है. दूसरा मरीना ये कहा कि आपको ये देखना है कि भाई आपने स्टेप लिया कि नहीं लिया. जब स्टेप ही नहीं लिया, आइदर साइलेंट रहने का, आइदर बात करने का, आइदर उसको रिफ्लेक्ट करने का, तो फिर डायलॉग नहीं हुआ. फिर आप वो प्रॉब्लम को जो है बना के रखना चाहते हो. तो करेक्ट मी मरीना इफ मेरी जितनी नहीं, आप सही अंडरस्टैंडिंग. बोल रहे हो. एंड एज यू आर टॉकिंग, यू नो, वेरी मच ऑन द ट्रैक. एंड आपने वो सही समझा जो मैंने आपको बताया अभी. और उसके साथ और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, यू नो, द इम्पैक्ट ऑफ इट. देखिए, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. यू मीट अ फ्रेंड, आप और मैं, मतलब, यू नो, वी हैड met in a very professional space, and then we built a bond, and we continued our you know, connection. And maybe because you are someone into development, into social work, and I mean in all your work, and वो हमारा एक intellect connect है, तो we're connected. And we have made those efforts to connect. और ऐसे नहीं कि हम मिले हैं, हमने ऐसे long calls किए हैं, but there is a sense of कनेक्ट दैट वी बिल्ड. तो जब आप मुझे कॉल करोगे, आपको ऐसे 5 मिनट तुम कैसी हो, क्या करना है, वो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे. आप बोलोगे देखो मरीना, आई हैव कॉल्ड यू टू टेल यू कि मुझे ये काम है या फिर मुझे वो करना है, राइट? तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इनिशियली तुम्हारे साथ बहुत सारा ऐसा बिल्ड करते हैं, यू नो, एक लेवल ऑफ बॉन्ड कहो कि एक फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं. और उसके बाद तुम उनके लिए कुछ नहीं होते हो, यू बिकॉज. तो उसका जो फाउंडेशन होता है ना विनोद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और फाउंडेशन मेरे लिए, इफ आई रियली हैव टू टॉक इन द कार्मिक यूनिवर्सल एस्पेक्ट, और समथिंग इज लाइक दैट लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट नेवर थिंक्स फॉर एनीवन. तुम ऊपर से कुछ भी फेंक दो, तुम खुद संत को भी फेंक दो, मतलब वो इट विल गो एंड हिट द ग्राउंड, राइट? तो the whole idea, what I realize is that when people are building that bond of friendship or commitment to really engage with someone, then it has to be consistent somewhere. It has to have its authenticity at a level where you can feel that connect. You know, तभी आप वो पर्सन को कॉल करके बोलोगे कि लुक, मेरे को ये कुछ काम है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या फिर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. देयर आर अदर पीपल जो एफर्ट नहीं लेते हैं. तो क्या होता है कि अगर आप एफर्ट नहीं लोगे, मैं 2 बार एफर्ट लूंगी, आप उसको रेसिप्रोकेट भी नहीं करोगे, तो इट्स ह्यूमन नेचर की थर्ड टाइम आई बी लाइक मुझे करना नहीं है, राइट? तो उसका इम्पैक्ट जो है, आई वुड से दैट पेशेंस लेवल हो, वो ड्रॉप हो जाता है, यू नो. तो अनकंडीशनल जैसा मेरे लाइफ में तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ है. यू नो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज हाउ ईच बॉन्ड विल हैव इट्स ओन स्पेस. जैसे कि आप भी अपने लाइफ में देखोगे, जिनके साथ आप रेगुलरली टच में हो, जिनके साथ आप ज्यादा काम कर रहे हो, उनके साथ प्रेजेंट डे में आपका जो कनेक्ट है वो डीप रहेगा. मे बी जब मेरे बारे में सोचोगे, यू विल हैव सम मेमोरीज कि हाँ ठीक है, मरीना ये करती है नो, एंड देन यू वांट टू गेट इन टच, यू वांट टू इंटरेक्ट, right? There's some sort of a communication. So when the effort is not on the from the other side, where people don't talk, when people are not creating value, मतलब तुम्हारा जैसे कि मैं तो अभी लोगों को सीधा कहती हूँ कि ना कि तुम हाउ आर यू, आई एम गुड, फाइन बोलकर, मतलब हाउ मच यू नो अबाउट द पर्सन, मतलब क्या है यार. तुम 2 तो 3 लाइन लिखो. और ये जो व्हाट्सएप कल्चर हो गया है ना, तो ये इतना पथेटिक हो गया है कि एज आई सेड, वोकैबुलरी की तो सबकी लगी पड़ी है, किसको वोकैबुलरी का सेंस नहीं है. यू आई होता है. तो जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मेरी वॉइस, एक्सप्रेशन, एंगर जो आप मेरी वॉइस में सुन सकते हो, मेरे फेस पे देख सकते हो, वो टेक्स्ट पे नहीं देख सकते. सो आई ऑलवेज टेल पीपल द बेस्ट टेक्स्ट यू कैन ऑलवेज राइट इज कैन आई कॉल यू. यू नो, कि तुम फोन मरीना उठा दो, मैं 2 मिनट में बात करो और वो कर लो. इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक
मल्टी कंट्री हेड से बात हुई थी, एंड शी आस्क्ड मी कि you know the how you work with the team and all. So I say generally, I said to her that what I do generally is that I am a less text person. I pick up my phone और फोन पे जो है मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई सेड द सेम थिंग टू हर दैट कि कई बार क्या होता है, आई एम राइटिंग टू यू समथिंग ऑन अ टेक्स्ट, you might be understanding something different. फॉर एग्जाम्पल, हम मैं अभी आपको आप कह के बोल रहा हूँ, बट मैं वो टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, यू लिख रहा हूँ, यू माइट थिंक कि तू बोल रहा है, तुम बोल रहा है, आप बोल रहा है, क्या हो गया. एंड समटाइम्स ना आई रियलाइज दैट when you talk to person, the clarity of communication is much better, because when you write or text, especially the WhatsApp culture which you said, आप क्या लिख रहे हो, सामने वाला उस वक्त जब वो पढ़ रहा है, वो किस मूड में है या किस मूड में वो किस सिचुएशन में है. अभी पता चल रहा है उसका कहीं घर में युद्ध हुआ है या ऑफिस में कुछ झगड़ा हो गया है, आपने उसको मैसेज भेजा, वो लोग ना रिस्पॉन्ड करते हैं, मैंने देखा है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर वो गलत कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है वो, एंड देन वो पूरे डायलॉग, पूरे आपके कम्युनिकेशन या जो भी आपका सिचुएशन होता है उसको बहुत वर्स कर देता है. लेकिन जब आप कॉल करोगे तो वो बोल देगा कि नहीं भाई, विनोद, आई विल कॉल बैक यू, मैं भी थोड़ा सा कहीं और हूँ या किसी प्रॉब्लम में. आई थिंक ये जो आपने कहा ना, बहुत, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट हम कॉल पिकअप नहीं करते. हम इस व्हाट्सएप कल्चर में ऐसा हो गए, पहले होता था दिवाली जाते थे विश करने एक दूसरे के हम्म। साथ, क्रिसमस को विश करने जाते थे, सेलिब्रेट करने. अब तो कुछ नहीं, वो स्टिकर्स बन गए हैं और आपने भेज दिया, मैरी क्रिसमस हो आपने गया, सबको और भेज दिया है। हाँ, सबको भेज दिया है. अब तुमको लगता है कि अरे यार ये जिंदा है, मतलब हाँ ये तो हाँ, कहीं है, कहीं तो है। हाँ, और आपका हो गया खत्म, हाँ, फेस्टिवल खत्म हो हम्म। गया, आपका दिवाली हम्म। खत्म हो गया, आपका होली खत्म हो गया. मतलब वो जो मिलते थे ना, जो अभी आपने मतलब जो बात कही ना कहीं बात करने की जरूरत है, तो ये जो हमारे फेस्टिवल, आपने कल्चर का बात किया बीच में, दीज मीन्स कल्चर ऑल्सो. पहले क्या होता था कि शायद उस लेवल पे डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने हम लोग मिलते थे. ठीक है, हम्म। कि कभी फेस्टिवल्स पे मिल गए, सेलिब्रेशंस पे मिल गए, शादी में मिल गए. आजकल तो शादी के कार्ड भी लोग देने नहीं आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप कर दे रहे हैं. हाँ, और और तो they need also RVA, what is that, this thing, RSVP करके, हाँ, RSVP, yes yes, बर्थडे correct. है वो उसका जो है, लोग वीडियो बना के भेज दे रहे हैं. हम्म। कई जगहों पे तो मैंने देखा कि वर्चुअली मैरिजेस भी हो जा रही हैं. तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीजें, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग पास आने की बजाय, जो एक वर्ड था ना, ग्लोबलाइजेशन वाला, हम्म। हम्म। वो दूर होते जा रहे हैं. शायद हमारे जो बॉर्डर्स हैं, उनके बीच में तो नजदीकियां हो गई हैं, बट हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, इस डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स, वो दूरियां बढ़ गई हैं. ये मेरा मानना है. मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपसेट हैं, कहीं ना कहीं दुखी हैं, सैड हैं. और उसका जो एक मुझे कारण लगा कि इस डायलॉग नहीं हो रही है. डायलॉग को अगर मैं अगर हिंदी में कहूँ तो बातचीत की हम बात कर रहे हैं, सिंपल भाषा में, कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है हम्म। कि बातचीत करो. न्यूक्लियर साइंस नहीं है, पर उसका एसेंस जो है सिर्फ बातचीत से नहीं होगा, एक लेवल ऑफ कनेक्ट वाली जो बात हम करते हैं वो होगा। जुड़ने की बात जो हम कर रहे हैं कि जुड़े रहो. जैसे कि मेरे घर के पास एक मच्छी वाली आती है जो मेरी मम्मी की फ्रेंड है। हाँ, ठीक है, तो उसके साथ वो, तो मेरी मम्मी ऐसे मच्छियां खरीदती हैं ऐसे वैसे तो वो जब घर पे आती है, वो जो बात करती है ना, ऐसे लगती है कि मेरी मासी आई है। हाँ, तो वो जो कनेक्ट होता है वो मच्छी वाले के साथ, वो खुद की मासियों से अच्छा होता है कभी कभी। हाँ. तो वही तो वो वही जो हैप्पीनेस, हाँ वो कनेक्ट होता है। तो इट्स नॉट अबाउट बातचीत, बट जो चीज को लेकर तुम बात करते हो, जिस कैसे जिस जुड़ने का प्रयास करते हो, कैसे समझने का हाँ प्रयास करते हो. एग्जैक्टली, जी। जी, थोड़ा सा, इट्स अबाउट दैट। हाँ, मतलब कह सकते हो एक एडवांस लेवल ऑफ बातचीत. बेसिकली आप जो टू और थ्रू वाली बात है, कि आप टू के साथ हम्म। कर रहे हो या थ्रू के साथ कर रहे हो. तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डायलॉग का. मनीना, हमारे पास समय बहुत कम है और 3 मिनट रह गए हैं, और मुझे लगता ओके। है कि डायलॉग पे सालों भर बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है. डेफिनेटली। बट थैंक्स टू यू मरीना, ने ये जस्ट मेरी शुरुआत है, बिकॉज मुझे ही लगा कि कहीं ना कहीं बहुत इसकी जरूरत है. और लोगों ने कई जगहों पर मैंने देखा, लोगों ने इसको मेंटल हेल्थ के इशू से जोड़ रखा है, कई ने डिप्रेशन के इशू से जोड़ रखा है. मुझे लगा कि एक सिंपल, एक कॉमन व्यक्ति जो डायलॉग के बारे में बात करे,
मुझे आपसे बेहतर कोई दिखा नहीं और आप इसको वॉलंटरी लेवल पे कर रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे को इससे पैसे कमाने हैं या कुछ और करने हैं, बट एक ये कहीं न कहीं है कि इसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत होनी चाहिए और बाकी लोगों तक भी ये मैसेज जाए कि किस तरीके से डायलॉग की ज़रूरत, बिकॉज़ सब चाहते हैं डायलॉग हो, बट सब कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और सब कहीं न कहीं गुमशुदा हैं इस पूरे अ, दुनिया में और उसके लिए लोग इसका सहारा ले रहे हैं, डायलॉग। हम्म। ये डायलॉग नहीं। नहीं है, ठीक है? डायलॉग मुझे जो लगता है कि लोगों के बीच में होता है। सोशल मीडिया पे पता नहीं कितना डायलॉग कर रहे हैं लोग, बिकॉज़ या। आपने कहा जैसे बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं। कुछ तो मैंने देखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा नहीं रहूँ। बट मैंने देखा हम्म। कि इतने सारे लोग, मेरे को लगता है हर सेकंड कई सारे ग्रुप पैदा होते होंगे और उनमें डायलॉग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, बस फॉरवर्ड्स हो रहे हैं और लोग, कुछ ऐसे भी ग्रुप है जिनका नाम है डायलॉग, ठीक है? और ओके। और उन पे डायलॉग के नाम पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कहीं कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो जा रहा है, कहीं कोई 10 फ़ोटो भेज दे रहा है, कहीं कुछ भेज दे रहा है। तो एक तो ना इतना सारा कंटेंट है लोगों के पास कि डायलॉग के लिए समय नहीं है, ठीक है? सब अपने कंटेंट में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया से लेके इंस्टाग्राम या बाकी चीज़। एनीवेज़ थैंक्स मरीना, एंड मुझे लगता है अभी हम लोग और बातचीत थैंक्स। करेंगे इसके ऊपर। लेट्स Yes, सी definitely. And if anyone wants to connect to me, so they can go to the Power of Dialogue page on Facebook, और मेरा dialogue email ID है marina.dialogue@gmail.com. So they मरीना, can आप ये दोनों मेरे को connect ना me. मैसेज भी कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि जी। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँ और जो भी मेरा नेटवर्क कम्युनिटी उसमें शेयर करूँ, तो वहाँ पे ये मैं आपका ईमेल आईडी और आपका जो पेज है, ताकि लोग इस चीज़ को समझें। बहुत ज़रूरी है Sure. कुछ समझना और डायलॉग के ऊपर डायलॉग करना। Yes. Thank you so much, Vinod. थैंक्स, Thank you so थैंक्स much for मरीना। this opportunity. या थैंक्स, Take थैंक्स care. मरीना। Thank you. Thank you so much. Bye.